Welcome everyone. So today we are having Rishabh Jain, who is a former student of Ramanujan College and who has cleared TU Delhi University entrance test with 26th rank. Alongside, he has cleared Banaras Hindu University postgraduate entrance test with All India rank 40 and IIT JAM 2021 with All India rank 172. He has also cleared TIFR, that is Tata Institute of Fundamental Research written examination in 2021. And right now he is pursuing Masters in Mathematics from IIT Kanpur. So firstly, I would like to thank you, Bhaiya, for giving me and our society an opportunity to hold a conversation with you. I have several questions regarding your preparation plans and few about your future plans. So what after Masters? Basically, what is your aim after this? Okay. I'm planning to do research in pure mathematics. Basically, my research area will be algebraic geometry, which is a mixture of algebra and geometry part. All right. So when did you realize that this is your aim and you have to do this? Okay. Basically, I love algebra since undergraduate. Basically, due to the Megha ma'am. She studied us algebra very very beautifully, fascinating in nature. मतलब उनका पढ़ाने का तरीका इतना ज्यादा फैसिनेटिंग था कि अलजेब्रा से किसी को भी प्यार हो जाएगा। तो वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई कि मेरे को अलजेब्रा में ही आगे रिसर्च करनी है। और आईआईटी कानपुर आके मुझे समझ आया कि इसके कितने ब्रॉड एरियाज हैं जिसमें हम रिसर्च कर सकते हैं, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। तो इसलिए मैंने फिर ग्रेजुएशन से मैंने अपना माइंड सेट कर लिया था कि मैं अलजेब्रा में पीएचडी करूंगा। So right now you are in IIT through your JAM examination. So what about JEE Mains? Have you given that? Yes, I have given that exam. Basically everyone, हर कोई 12th में जब होता है तो वो JEE Mains देने की सोचता है। So tell me about your preparation for IIT JAM, like when you have started, difficulties you faced, and how you managed your college academics with your preparation. Okay. Starting. Okay, I will start with the preparation. Basically second year में आप लोग start करते हो preparation के लिए। IIT JAM आपको clear होता है कि आपको masters करना है या नहीं करना है। सेकेंड ईयर में आपको पता लग जाता है। तो मैंने अपनी जर्नी सेकेंड ईयर से स्टार्ट की थी। स्टार्ट करने के लिए मैंने कोचिंग ढूंढा पहले। मेरा आइडिया नहीं था, मेरा प्लान नहीं था कि मैं IIT JAM दूं। मेरा प्लान था कि मैं ISI या CMI का एग्जाम दूं। लेकिन धीरे धीरे लेकिन यहाँ पे कोई भी कोचिंग दिल्ली में अवेलेबल नहीं थी IIT JAM की। तो इसलिए फिर मैं उसमें कोचिंग के लिए एडमिशन लिया मैंने इसमें, ताकि मेरे बेसिक कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो सके और एक आइडिया लग जाए कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से तैयारी करनी है, स्ट्रेटेजी क्या है, ये सब। तो सेकेंड ईयर इज द आइडियल टाइम। All right. So as you have given other examination, excelling at each, so could you tell me the difference between other exams you attempted and IIT JAM? Okay. The main difference is the syllabus. IIT JAM generally works on the second year, first or second year syllabus. तो जितना भी फर्स्ट और सेकेंड ईयर में तुम DU के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उतना सिलेबस आता है JAM के अंदर। लेकिन मैंने TIFR भी दिया, ISI भी एग्जाम दिया, DU MSc भी दिया, BHU भी दिया। तो इन सब में डिफरेंस जो मेरे को नजर आया वो ज्यादा सिलेबस का आया। TIFR कवर्स ब्रॉड सिलेबस, मतलब बेसिकली मैट्रिक स्पेसेस, टोपोलॉजी, जनरल टोपोलॉजी, ये सब एरिया कवर करता है TIFR एग्जाम। BHU में तुम्हारी थोड़ी फिजिक्स भी आ जाती है, मैकेनिकल, डायनेमिक्स, ये सब एरिया आ जाता है। लेकिन JAM एक बहुत ही कम एरिया को पकड़ के चलता है। तो मेन डिफरेंस जो है इन सभी एग्जाम्स में वो है तुम्हारा एक तो सिलेबस और एक आता है पैटर्न। IIT JAM totally based on MCQ, MSQ and fill in the blanks question. And TFR generally depends on true false. तो वो true false देता है हमें, तो उसमें ज्यादातर हमारे true false आते हैं। और अब आगे होने वाला है कि वो उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे। तो ये रहता है पैटर्न। तो ये डिफरेंस है सभी एग्जाम्स। BHU भी टोटली MCQ रहता है, लेकिन उसके क्वेश्चंस इतने ज्यादा होते हैं, वो और भी एरिया कवर करता है, फिजिक्स, मैथ्स, स्टैट्स एंड ऑल। Let me ask you, like for IIT JAM, how much time is it required to cover up the whole syllabus of it? Okay. मैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग बताऊं तो मेन 6 महीने आपको लगेगा। अगर आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हैं तो 6 महीने से ज्यादा आपको नहीं लगेगा एग्जाम को क्लियर करने में। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट आपको लगता है कि वीक है तो उसके लिए आपको टाइम ज्यादा लग सकता है।
सो माय बेस्ट सजेशन इज दैट स्टार्ट रीडिंग बुक्स. जितना आप बुक्स को रीड करोगे उससे आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे. ठीक है ना. तो कंसेप्ट जैसे जैसे स्ट्रांग हो जाएंगे ना, तो आपको एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा. और जैम में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. मतलब 6 महीने मोर देन इनफ है जैम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि एक पैटर्न उसका फिक्स है. आपको ये भी पता है कि किस क्वेश्चन से, किस एरिया से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने नंबर के पूछे जाएंगे. तो लाइक जैम जो आजकल का मिथ है वो क्या है कि जैम इज टफ, आईआईटी एग्जाम टफ है, बहुत ज्यादा टफ है. तो ऐसा कुछ नहीं है. आप एक स्ट्रेटेजी बनाओ अपनी. और सबसे मेन जो मुझे लगा वो ये लगा कि बुक रीडिंग. स्टार्ट रीडिंग द बुक. सेकेंड ईयर से ही आप लोग स्टार्ट कर दे बुक रीडिंग करना, जिससे कि आपके जो मेन कंसेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाएंगे. तो जेएम इज वेरी इजी. Like I want you to give some suggestion like how to start preparing, and you talked about books and any other resources that you Okay. used. ओके. प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट सबसे पहले सिलेबस देखो. आप जिस भी आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, लाइक आईआईटी जेएम की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आप पहले सिलेबस चेक करो. सिलेबस हो सकता है कि कई बार चेंज हो जाए, तो सिलेबस चेक करो. उसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनाओ कि क्या क्या सिलेबस आ रहा है पर्टिकुलर टॉपिक. जब तक तुम सिलेबस पे स्टिक नहीं रहोगे तब तक अब नहीं हो पाएगा क्लियर वो. क्योंकि सिलेबस में जितना पूछा गया है, अगर आपको आईआईटी जेएम क्लियर करना है तो सिलेबस पे स्टिक रहो, उसके लिए प्रिपेयर करो. अपना एक शेड्यूल बना लो. तो और सबसे ज्यादा है कि बुक रीडिंग करने के बाद अपने सेल्फ नोट्स बनाओ. अगर कोई बच्चा कोचिंग ले रहा है तो उसके लिए क्या है कि उसके नोट्स खुद बन जाएंगे, तो उसको सभी गाइडेंस मिल जाएगी. मेरे साथ क्या था कि मेरे को गाइडेंस की जरूरत थी, क्योंकि मेरे से बड़ा कोई है नहीं, तो मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, इसलिए मैंने कोचिंग लेने की सोची. तो कोचिंग क्या है कि आपको एक डायरेक्शन दे देती है कि आपको इस डायरेक्शन में काम करना है, इस कंसेप्ट के ऊपर काम करना है, और वो सिलेबस के साथ ही स्टिक रहते हैं. लेकिन अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो वो भी बहुत अच्छा है. इनफैक्ट सेल्फ स्टडी ही ज्यादा अच्छा है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप सेल्फ स्टडी करो, बुक्स को रीडिंग करो, और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो उतने करो. मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट डिस्कशन. तो जितना तुम डिस्कशन करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, तो उतनी आपकी तैयारी और स्ट्रांग होगी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो. तो मेरे हिसाब से स्टार्ट करने के लिए आपको सिलेबस देखो, एक एक टॉपिक को, हर एक टॉपिक को पकड़ो, मार्किंग स्कीम चेक करो कि कौन सा एरिया में से कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. लाइक मेन पार्ट जो रहता है आईआईटी जैम का वो रहता है लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, ये जो मेन डिफरेंशियल कैलकुलस, ये तीनों पार्ट इतने मेन है कि इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और इट इज द बेसिस, मतलब बेस है मैथमेटिक्स का तुम्हारा ये तीनों सब्जेक्ट. तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको स्ट्रॉन्ग करो. स्ट्रॉन्ग कैसे करना है? हर एक कंसेप्ट को रियल फील करो कि आपको कैसे, मतलब कोई चीज आई. लाइक रियल एनालिसिस में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है, तो वो बहुत नॉर्मल है. जनरली बच्चे स्टार्टिंग में उसी में फंसते हैं. तो आगे मास्टर्स में जाके आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इतनी इंटेलेक्चुअल की कि आपको उस डेफिनेशन को सच में क्या कहती है वो डेफिनेशन. लाइक आईआईटी जैम इज नॉट अबाउट कि जस्ट क्लियरिंग द एग्जाम, एमसीक्यू क्लियर कर लिए. तो आईआईटी जैम में जो मैंने गलती की वो मैं चाहता हूँ कोई और ना करे, कि आईआईटी जैम को देते वक्त आप ये ना सोचें कि हमको एमसीक्यू देना है. लाइक ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि कोई भी कंसेप्ट का बैकग्राउंड क्या है. जिसकी वजह से मेरे को जो हेल्प, जब मैंने रियलाइज किया सेकेंड टाइम में, तो मैंने सारे थ्योरम्स के प्रूफ जो थे उनको समझा, जिसकी वजह से मैंने टीआईएफआर एग्जाम्स में भी काफी हेल्प मिली और बीएचयू में भी हेल्प मिली. तो ये है कि आप स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन, लेकिन in a organized manner. Systematic and consistency is the most important part of your preparation. So All right. these are all the. So, if you had said according to you that if a student is having his or her basics clear, then self-study is optimal. And if a Yes. student wants coaching, then according to you, which sort of coaching would be better, the online one or the offline one? Okay, basically इसका आंसर ये है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड रहता है. अगर कोई ऑनलाइन कोचिंग में कंफर्टेबल है, लाइक अगर आपका डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है, अगर आपकी कोचिंग आपके नियर अबाउट एरिया में नहीं है और आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है इसकी वजह से, तो ऑनलाइन कोचिंग आजकल इतनी अच्छी हो गई, लाइक अनअकैडमी हो गया, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन कोचिंग. बट मेरी तरफ से ऑफलाइन कोचिंग बहुत ज्यादा अच्छा है. क्यों? क्योंकि वो आपको फेस टू फेस लर्निंग एक्सपीरियंस देता है. जो भी आपके डाउट है वो फेस टू फेस क्लियर हो जाएंगे. तो आजकल हम सभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कोरोना की वजह से सभी ने ऑनलाइन पढ़ा. ठीक है, ऑनलाइन एक अच्छा तरीका है पढ़ने का, बट ऑफलाइन आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी जो है ना आपकी, वो ज्यादा मतलब स्ट्रांग होगी.
आप फेस टू फेस किसी क्वेश्चन को डील कर रहे हो, क्योंकि आप जब फेस टू फेस किसी क्वेश्चन को डील करते हो तो आपके एक की जगह 10 क्वेश्चन निकलते हैं। तो आई थिंक दोनों कोचिंग ही सही है, बट मेरे हिसाब से ऑफलाइन कोचिंग इज बेटर देन ऑनलाइन कोचिंग। Thank you. You have done your preparation while you're college, so it would be very hectic. So any time Yeah. management tips and how much hours do you give per day? ओके मैंने तो अपनी कॉलेज के टाइम भी प्रिपरेशन किया था, तो मेरे लिए तो काफी हेक्टिक था। लाइक 5 डेज कॉलेज और 2 दिन अपना वीकेंड्स में कोचिंग। तो टिप्स यही है कि आपको डेली टाइम निकालना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा ज्यादा टाइम लगता है, मैं अपने अकॉर्डिंग मेरे से सिर्फ 3 घंटे ही निकल पाते थे जब मेरे को दोनों कॉलेज कॉलेज और अपना कोचिंग दोनों मैनेज करना पड़ता था। लाइक 3 to 4 आवर्स आपको निकालने तब भी पड़ेंगे, और आप वो आपके सारे सेल्फ स्टडी के होने चाहिए। लाइक ये नहीं कि आप कोचिंग में जो पढ़ा रहे हो ना आपको, तो वो आपको घर जाके रिवाइज जरूर करना है। तो आपको एटलीस्ट 3 आवर्स आपको मैथमेटिक्स खुद पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो आपको कंसेप्ट स्टेबली आपके माइंड में बैठ पाएगा। तो आई थिंक अगर आप कोचिंग और कॉलेज साथ में कर रहे हो तो 3 आवर्स इज इनफ, 3 to 4 आवर्स इज इनफ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। All right. So at the end of your preparation, you must have done revisions. So in which way basically you Yes. have done revision, and according to you, what's the ideal way of revision? ओके, रिवीजन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। ये अच्छा क्वेश्चन था। रिवीजन में आपको क्या करना है, बेसिकली आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, आपको सबसे पहले अपने काम करना है नोट्स पर। जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं वो आपके खुद के लिखे होने चाहिए। लाइक ये नहीं कि आप बुक उठा रहे हो जस्ट कॉपी कर रहे हो, तो आपके खुद के लिखे हुए नोट्स होने चाहिए। आप जब भी एक टॉपिक कवर करते हो तुरंत उसे रिवाइज करो। लाइक आपने आपने एम बनाया आपकी 15 दिन में आपको रियल एनालिसिस करना है। उसके बाद आप ग्रुप थियरी पे स्विच करना चाहते हो, तो ग्रुप थियरी करते करते वक्त भी आपको रियल एनालिसिस को रिवीजन करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या रहेगा कि आप नोट्स बना लो और उसके जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए कोशिश करो। पास्ट ईयर की बुक आती है ऑनलाइन, आप उसको परचेज करो या पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को करो, ताकि उससे आपको इतना हेल्प मिलेगा। आपको आपने कंसेप्ट सारे पढ़ ही लिए हैं, तो आपको रिवीजन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका है कि आप पास्ट ईयर जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सको उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा। हर एक टॉपिक कवर करने के बाद उसको रिवाइज करते रहो। विद इन 15 डेज आप रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए होंगे, आप सभी सब्जेक्ट का एक ही बारी में रिवीजन करो। और सबसे अच्छी हैबिट है कि आप सुबह उठने की आदत बना लो, तो ज्यादा अच्छा है। सुबह उठ के रिवीजन करोगे बहुत अच्छा रहेगा। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप सुबह उठो, रिवीजन करो, हर एक टॉपिक। ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, 3-3 अगर आपने आज के लिए गोल अपने सेट किया, आप मेरे को 10 पेजेस करने थे, तो जस्ट वही 10 पेजेस आप हाफ एन आवर में रिवीजन कर लो नेक्स्ट डे। तो ये आपको कंसिस्टेंसी बनानी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो छूटता चला जाएगा। आप बेशक कितने ही सिलेबस करते रहोगे, और 2-3 सब्जेक्ट कर लो, 4 सब्जेक्ट कर लो, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। तो रिवीजन के लिए क्या है, आपको नोट मेकिंग करनी है, और आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे जितना ज्यादा ध्यान दे सको उतना ध्यान देना है कि कैसे क्वेश्चन सोल्व हुए। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन सोल्व ना हो, लेकिन ट्राई टू सॉल्व देम। ओके, आंसर बुक हो, कहीं ऑनलाइन मिल जाते हैं आंसर्स, आजकल तो आंसर बुक्स आ रही हैं, तो उनको पढ़ो। उसके बाद सेकंड जब अटेम्प्ट करो तो आंसर मत देखो, सॉल्यूशन बिना देखे इसको अटेम्प्ट करो। तो सबसे बेस्ट यही तरीका है कि आपको रिवीजन करने का। All right. In your opinion, basically, consistent revision is a major. यस So as you have cleared many exams, so it is very palpable that you have a great chunk of motivation. So where does that motivation comes from? Like it's an exterior agent or it ओके, is interior? मेरे लिए तो दोनों ही था, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल लाइक आपके फ्रेंड्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, तो ये लाइक ये बहुत सपोर्ट करते हैं आपको, आपके प्रोफेसर्स हो गए। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन मुझे इन सब की तरफ से मिला कि लाइक दे ऑलवेज मोटिवेट मी कि आप तू कर सकता है ऋषभ, यू कैन डू इट। लाइक मेरे प्रोफेसर्स हो गए, सुमित सर हो गए, मेघा मैम हो गई, तो ये हमेशा कहते थे कि यू कैन डू इट, यू जस्ट नीड कंसिस्टेंसी, एंड मतलब आप कर लोगे, आपके अंदर कैलिबर है। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन मुझे यहाँ से मिला। इंटरनली मुझे ये लगा, ये यहाँ से मिला कि लाइक मेरे को मैथमेटिक्स पसंद है, आई लव मैथमेटिक्स। तो इंटरनली आपको यहीं से आएगा कि आपको कुछ बनना है। लाइक एक मैथमेटिशियन, आपके नाम के आगे जब तक डॉक्टर नहीं लग जाएगा तब तक आपको रुकना नहीं है। तो इंटरनल मोटिवेशन यहाँ से आता है कि एक मैथमेटिशियन जब तक आपके नाम के आगे ना लग जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। इंटरनल यहाँ से आया। और एक तरीका और है कि
लाइक मेरा ये है कि आई एम रिलीजियस पर्सन, तो मेरे लिए मोटिवेशन मुझे प्रे करके भी आता है. लाइक एवरी मॉर्निंग आई यूज टू प्रे टू गॉड, लाइक रिसाइटिंग हनुमान चालीसा एंड ऑल. तो इनसे मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है, लाइक एक पॉजिटिविटी आती है. और सबसे अच्छा मोटिवेशन का तरीका क्या है? कीप अवे योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पीपल. आपकी कंपनी ऐसी होनी चाहिए कि एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान आपके आसपास से पॉजिटिव माइंडेड पीपल रहे, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी भेजते रहे कि हाँ यू कैन डू इट. क्योंकि एग्जाम एक प्रिपरेशन का ऐसा जर्नी है, उसमें आपको बहुत डिप्रेशन भी आता है. लाइक एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आप सेचुरेटेड पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आपको लगेगा कि नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा. या फिर मेरे से जब आप टेस्ट सीरीज देना चालू करोगे, एग्जाम के 2 महीने पहले आप टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको लगेगा मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे. तो उस टाइम पे मोटिवेशन चाहिए कि लाइक कोई हो साथ में. तो एक मोटिवेशन होता है कि अंदर से आ जाता है कि कोई बात नहीं, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, अगली बार हो जाएंगे. और एक होता है आपको फ्रेंड्स का सपोर्ट रहेगा, जब तक टीचर्स का सपोर्ट रहेगा. तो मेरा सजेशन यही है कि मोटिवेशन के लिए आप सबसे पहले डिस्कशन करो. मैथमेटिक्स को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई फ्रेंड के साथ, प्रोफेसर्स के साथ सारे डाउट्स क्लियर करते चलो. अगर आप डाउट छोड़ दोगे तो वो कभी क्लियर नहीं हो पाएंगे. तो मेरा अच्छा तरीका यही था कि मैंने जितने भी मेरी गलतियां थी उनको मैंने नोट डाउन कर लिया. एक कॉपी बना ली मैंने सेपरेट, जो मेरे से क्वेश्चंस गलत होते थे उनको मैंने नोट डाउन कर लिया, और वो पूरी कॉपी बना ली सेपरेट. तो जब भी एग्जाम्स का टाइम था उससे एक हफ्ता पहले उन सभी गलतियों पे मैंने काम किया. तो जब तक आप अपनी गलतियों पे काम नहीं करोगे ना और उनसे सीखोगे नहीं, तब तक कोई एग्जाम क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. All right. So, in the end, I would like you to give a brief guidance to the ones who are aspiring for entering IIT through JAM. Any mistakes or myths that you heard and you don't want any aspirant to be aware of that? ओके, मिथ सबसे पहले यही है कि लोग सोचते हैं कि आईआईटी जेईई का एग्जाम बहुत टफ होगा. तो एग्जाम टफ नहीं है बिल्कुल भी. जस्ट आपको लगे रहना है, कंसिस्टेंट रहना है. और सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस के ऊपर आप स्टिक रहोगे, तो उस पर स्टिक रहो, कंसिस्टेंट रहो, प्रिपरेशन करते रहो. पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एटलीस्ट 3 टाइम करो. जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है उनको 3 बार रिवाइज करो, उनको समझो कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है तुमसे. तो क्वेश्चंस जनरली रिपीट नहीं होते हैं आईआईटी जेईई में. एक भी क्वेश्चन आपको रिपीटेड नहीं दिखाई देगा, लेकिन पैटर्न सेम दिखाई देता है कि इस एरिया से पूछा गया है तो उस एरिया से फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा. तो वो करते रहो. और सबसे इंपॉर्टेंट, आईआईटी जेईई इज नॉट द ओनली एग्जाम. ठीक है, तो और एग्जाम्स की तरफ भी ध्यान दो. डीयू है, आईएसआई है, सीएमआई है, टीएफआर एग्जाम है. ये सारे बहुत अच्छे क्री इंस्टीट्यूट है इंडिया के, तो इन सब पर भी ध्यान दो. ठीक है, एक एग्जाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता है. तो इसलिए आईआईटी जेईई के साथ साथ मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि और एग्जाम्स को भी दो, सभी के फॉर्म्स भरो और सभी के लिए प्रिपेयर करो. लेकिन फोकस एक टाइम पर एक ही पे रहना चाहिए. अगर आपको पता है कि आईआईटी जेईई आपको क्लियर करना है तो फोकस उस पर रहना चाहिए. लेकिन तैयारी करते वक्त आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट का प्रूफ आना चाहिए. लाइक मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने कई सारे फेस किए हैं. तो जो लैक मेरे को दिखाई दिया अपने अंदर वो ये था कि आपको प्रूफ्स के ना हर एक स्टेप के बारे में थिंकिंग एबिलिटी आपकी होनी चाहिए. लाइक जनरली बच्चे क्या करते हैं कि प्रिपेयर कर लेते हैं, एमसीक्यू है, सॉल्व किया, सॉल्व आंसर टिक मारा, आगे बढ़ दिए. लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड नॉलेज जो है ना वो आपको टेस्ट किया जाता है इंटरव्यू में. तो हो सकता है आगे पैटर्न चेंज हो जाए. अभी तो आपको सिर्फ जैम के स्कोर पे लेते हैं, हो सकता है इंटरव्यू के बेस पे भी ले. तो अभी से स्टार्ट कर दो कि आप इंटरव्यू के लिए तैयार करना चाहते हो अपने आप को, तो कंसेप्चुअल नॉलेज आपको आनी चाहिए. और सबसे पहले अगर कोई आईआईटी में जाने के लिए अपना ड्रीम बना रहा है तो अपने बेसिक कंसेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना. लाइक लीनियर अलजेब्रा एमएससी में अभी हम पढ़ रहे हैं, तो हमें प्रॉब्लम यही आती है कि जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट में बेसिक सब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं करके आए हैं तो वो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं. लाइक लीनियर अलजेब्रा हो गया, एनालिसिस हो गया, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, मैट्रिक्स स्पेसिस, ये सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको अंडर ग्रेजुएट में ही बहुत अच्छे से आने चाहिए. तो इनके ऊपर मैं चाहूंगा कि बच्चे पहले से ही काम करके जाए, ताकि जब उनका एग्जाम क्लियर हो और आईआईटीज में जाए तो वो compete कर सके बच्चों की तरह. क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है यार, तो आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा, अपना माइंडसेट क्लियर करके चलना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट्स मुझे आने चाहिए. ठीक है, तो बच्चे क्या सोचते हैं, डीयू में अच्छा नंबर आ रहे हैं, सीजीपीए अच्छी आ रही है तो आईआईटीज में भी अच्छा होगा. तो ऐसा कुछ नहीं है.
आपको वहां पे आपसे ज्यादा कंपटीशन भी मिल सकता है। तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है, बिकॉज सभी कंपटीशन इतना बढ़ गया कि आपको TFR वाले बच्चे वहां ज्यादा मिलेंगे, ऐसा रहता है। तो इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि अभी हो सकता है आप सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट हो आपकी पूरे एरिया में या फिर रूम में, ठीक है, लेकिन आपसे ज्यादा समझदार लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो फाइनल वर्ड्स मेरे यही है कि हमेशा मैथ से प्यार करते रहो। जिसको मैथ से प्यार है वही आगे प्लानिंग कर रहा होगा आपकी मास्टर्स करने की, PhD करने की। तो आप इसको अच्छे से करते रहो। स्लो प्रोसेस जरूर स्लो होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको एक दिन सक्सेस जरूर देगी। फेलियर से सीखो, अपने मिस्टेक से सीखो। यही मेरे फाइनल वर्ड्स हैं। So thanks a lot, Bhaiya, to give so many answers which students and aspirants are nowadays ignorant of, and they search it on Google. It was a great conversation with you, and I wish you best in your future endeavors. Thank you. Okay, thank you.